Dear students, Assalamu alaikum. I have brought chapter for my students of grade 10 and their unit number 2 is the champions. Champions is about the two friends Ahmed Ali and Gulsher. They too were the very good, or I must say excellent, lightweight boxers, and they were equally good in boxing. The champions is used for both of them. They both became heroes in the final round. They are very good friends. They are bosom friends, very close to each other. They were brought up together in one community. They were age fellows. They studied together. So they were like brothers to each other, more than friends. Now, this is the story about the competition between Ahmed Ali and Gulsher. I start reading the chapter. Ahmed Ali and Gulsher were classmates. Again, he says that, starts his sentence with introduction about Ahmed Ali and Gulsher, that they were classmates, they were class fellows studying in grade 10 in a government school situated in the impoverished neighborhood of Liari, Karachi. Impoverished, poor. They belonged to the poor community. They were living in Liari, Karachi. It is a coastal area, Liari, where they both lived in the impoverished poor neighborhood. Their surroundings were very poor. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. They were so close to each other that they were more than a friends to each other. They were like brothers to each other. They had known each other since their childhood, growing up on the lower eastern side of Liari River. लियारी रिवर के नशेबी मशरकी इलाके में वो रहते थे. He says that दरियाए लियारी के नशेबी मशरकी इलाके में वो ये इकट्ठे बड़े हुए. Gulsher was fair, lean and lanky. Fair, he was of fair complexion. Lean, he was thin. He was weak, lean, weak, and lanky, he was skinny. He was very thin, skinny. His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth. So Liari was his birthplace. Before his birth, his family had already shifted there. Ahmed Ali was Shidi, dark, short and husky. Now, Shidi is a name of some ethnic group who came. They were inhabiting Karachi. They were living in Karachi. They are descended from the Bantu people of African Great Lakes region. अफ्रीका के इलाकों से ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे सेटल हो गए थे, यहाँ कराची में आबाद हो गए थे. So Shidi, dark, short and husky. He was dark in complexion as he hailed from African society. So he was husky. He was big and strong as well. Gulsher's hair was always falling over his eyes. Gulsher was fair. He belonged to the Pathan family. That's why he was fair. His hair was always falling over his eyes, while Ahmed Ali wore his black hair in a natural afro style, while Ahmed's hair were naturally African style. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world. इन दोनों छोटे बच्चे जो थे, इनका एक ख्वाब था कि एक दिन वो कम वज़न बॉक्सर बन जाएंगे और बॉक्सिंग में दुनिया के हीरो बन जाएंगे. कम वज़न बॉक्सिंग में दुनिया के हीरो बन जाएंगे. टू अचीव दिस चेरिश्ड ड्रीम, चेरिश्ड मीन्स प्रेशियस,
बहुत उनके ये बहुत खूबसूरत ख्वाब था, बहुत कीमती ख्वाब था. सो टू अचीव देयर चेरिश्ड ड्रीम, अपने इस प्यारे ख्वाब को की तकमील के लिए, दे वुड स्ट्राइव हार्ड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात मेहनत की. स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल, कोशिश की. अर्ली मॉर्निंग सनराइजेस वुड फाइंड देम रनिंग अलोंग द रिवर लियारी. हर सुबह का सूरज उनको देखता था कि वो दरियाए लियारी के किनारे भागा करते थे. एंड वुड अटेंड द बॉक्सिंग क्लब डेली विदाउट एनी ब्रेक, बगैर किसी ताखीर के वो बॉक्सिंग क्लब जाया करते थे, वहाँ पे क्लासेस लिया करते थे, ट्रेनिंग करते थे बॉक्सिंग की. They had a collection of pictures of famous boxers, so as they were fond of boxing, so they were fond of having pictures of the great boxers. They had a good collection of the pictures of boxers like Joe Louis. Joe Louis was an American professional boxer and heavyweight boxer. He was a heavyweight American professional boxer. Evander Holyfield, again an American heavyweight boxer. Rocky Marciano, he was also American boxer. Joe Frazier, they were very famous boxers, well known. Again American. Muhammad Ali and Mike Tyson all belong to America. They made their name in boxing. So Ali and Gulsher both had the collection of pictures of these famous boxers with them, cut out from old newspapers and magazines which they had they had cut from the old newspapers and magazines. If asked a question about any given fighter, and they had a sufficient knowledge about these boxers, because if one asked a question from them about any one of these boxers, they would immediately zip out from their memory. Immediately they searched from their memory, they took out from their memory. हमेशा वो फौरन अपनी यादाश्त से उनके रैंक्स बता दिया करते थे. They took out from their memory the ranks, divisions, weights, records of fights, knockouts, technical knockouts and draws or losses. वो फ़ौरन ही उनके ओहदे, उनका क्या दर्जा था, उनका वेट क्या, उनका वज़न क्या था, उनकी लड़ाइयों के रिकॉर्ड, उनकी शिकस्त, टेक्निकल नॉकआउट्स, उनकी तकनीकी शिकस्त, देयर ड्रॉज, कितने खेल, कितने मैचेस उनके, कितने खेल बराबर हुए, और लॉसेस, कितने उन्होंने हारे. एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज बॉक्सर्स वर विद देम. Each had fought many fights and had won many battles. Both Ahmad Ali and Gulsher had fought many fights and they had won medals as well. They were equally good boxers. वो दोनों उसी तरह से अच्छे बॉक्सर्स थे. द डिफरेंस वॉज इन देयर बॉक्सिंग स्टाइल ओनली. सिर्फ उनका तरीका, बॉक्सिंग का तरीका मुख्तलिफ था. अपने अपनी जगह वो दोनों बहुत अच्छे बॉक्सर्स थे. बिकॉज गुल्स लीन फॉर्म, गुल चूंकि पतला था एंड लॉन्ग और लंबा था, गुल पतला था एंड लॉन्ग रीच, उसकी जो लंबी रसाई होती थी, उसकी लंबी पहुंच जो थी, मेड हिम द बेटर बॉक्सर, उसको बहुत अच्छा बॉक्सर बनाती थी, उसे बहुत अच्छा बॉक्सर बना दिया था. वाइल अलीज शॉर्ट एंड मस्कुलर फ्रेम, वाइल अली वॉज शॉर्ट हाइटेड बट ही वॉज अ वेरी पावरफुल, ही हैड अ वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर. उसकी साख्त जो थी वो बहुत ताकतवर थी. इट मेड हिम द बेटर स्लगर, इसने उसको बहुत बेहतरीन हिटर बनाया था, मुक्केबाजी करने वाला हिटर, द वन हु हिट्स. सो इट मेड हिम अ गुड हिटर. व्हेनेवर they had met in the ring for friendly fight, जब कभी भी वो दोस्ताना लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे होते थे, रिंग के अंदर दाखिल होते थे, इट हैड ऑलवेज बीन हॉट एंड हैवी कॉन्टेस्ट. दे ऑलवेज फॉट हैवीली एंड इट हैज़ बीन अ हॉट, बहुत गर्म जोशी से वो लड़ते थे. once they were fighting from two different poles. एक दफ़ा वो दो मुख्तलिफ अतराफ से लड़ रहे थे for national boxing championship, and the winner of the final was to represent the country in world lightweight boxing championship. एक दफ़ा वो दो मुख्तलिफ मुतज़ाद
अतराफ से लड़ रहे थे और ये नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का मुकाबला था जिसमें जीतने वाले को वर्ल्ड लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में अपने मुल्क को पेश करना था या अपने मुल्क की तरफ से लड़ना था. आफ्टर अ सीरीज ऑफ एलिमिनेशन फाइट्स, व्हाट आर एलिमिनेशन फाइट्स? टू लूज इन सक्सेसिव राउंड्स. जैसे कि पहले जितने राउंड्स होते हैं उनमें जो हारता जाता है वो गेम से बाहर होता जाता है. दीज आर कॉल्ड एलिमिनेशन फाइट्स. देयर वर सो मेनी अदर बॉक्सर्स इन द रिंग बिसाइड्स अहमद अली एंड गुलशेर, बट दे लॉस्ट इन द सक्सेसिव राउंड्स. वो बाहर होते गए राउंड से एंड देन फाइनली अहमद अली एंड गुलशेर वर लेफ्ट. After a series of elimination fights, they had been informed that they were to meet each other in the final. Now in the final match, it was Ahmed Ali and Gulsher who had to fight between each other. You had to fight with each other in the final round. Those who were very close friends to each other, they were more like brothers to each other. But they had to face now in a competition, in a final round where one has to be the winner, and he had to be selected for the national boxing championship to present his country. That was scheduled to be held on the 14th of August, 2 weeks away. Only 2 weeks were left that they had to meet each other in the final round. The two boys continued to run together. They used to do their exercises and practices together. वो इकट्ठे भागते थे. But even when joking with each other, लेकिन एक दूसरे से मजाक करते हुए, they both had sensed that the wall was rising between them. उन्होंने महसूस कर लिया कि एक दीवार उनके दरमियान खड़ी होती जा रही है. Because definitely it was a competition. Everyone was willing to win. Gulsher even wanted to win. Ahmed Ali wanted that he should win the final round and to prove himself the real champion. So there was a wall rising between them कि उनके दरमियान कुछ इख्तलाफ आ रहा है. One morning, less than a week before their bout, जब उनके मुकाबले में एक हफ्ते का टाइम रह गया, एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया, दे मेट एज यूजुअल फॉर देयर डेली वर्कआउट. वो एक दूसरे से मिले. अपने वर्कआउट मीन्स फिजिकल एक्सरसाइजेस. वो अपनी जिस्मानी मशकों में वो एक दूसरे से मिले. रनिंग लाइटली अलॉन्ग द रिवर्स एज, वो दरिया के किनारे आराम से भागते हुए. गुल glanced at Ali who kept his eyes purposely straight ahead. गुल ने अली को देखा जिसने इरादतन अपनी आंखें सीधी सामने रखी हुई थी. pausing from time to time to throw fists at an imaginary jaws. और बार बार वो अपनी रनिंग के दौरान रुकता था और हवा में तसव्वुराती जबड़ों पर अपने मुक्के घुमाता था. After a mile or so, Ali puffed and said. एक या इससे ज़्यादा मील का फासला तय करने के बाद अली की सांस फूल गई और उसने कहा, लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल. आओ थोड़ी देर के लिए रुकें ब्रो. लेट्स स्टॉप फॉर अ वाइल ब्रो. ब्रदर, वी शुड टेक सम रेस्ट. आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर. मेरा ख्याल है हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहना भी है. लेट्स स्टॉप. गुल नॉडेड. गुल मूव्ड हिज हेड इन एग्रीमेंट. He himself felt that, yes, we had to say something. It was not natural to be acting as though nothing unusual was happening. He says that ये कोई फितरी अमल ना था, ये जाहिर करना कि कुछ गैर फितरी, ऐसा कुछ गैर मामूली चीज़ वाक़या नहीं हो रही. When two star players and bosom friends were going to fight each other within a few short days, जब दो बहुत ही गहरे जिगरी दोस्त और बहुत उम्दा खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, कम अरसे के वक्त में एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त भी हैं और बहुत उम्दा खिलाड़ी भी हैं. दे रेस्टेड देयर एल्बोज ऑन द रेलिंग सेपरेटिंग देम फ्रॉम द रिवर. उन्होंने अपनी कोहनियाँ उस बाड़ पे टिका दी जो कि दरिया के साथ साथ चल रही थी. अली दरिया के साथ साथ एक बाड़ लगी हुई थी जिस पे उन्होंने अपनी कोहनियाँ टिका दी. अली ब्रोक द साइलेंस. आखिर अली बोल उठा, मैन, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट. मैं नहीं जानता कि इसका क्या
इसका क्या हल हो सकता है? गुल हेल्प्ड, इट्स अबाउट योर फाइट, राइट? ये हमारी लड़ाई के बारे में है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? या राइट, आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट इट टू बडी। मैं भी इसी के बारे में मेरे दोस्त सोचता रहा हूँ। इनफैक्ट सिंस वी फाउंड आउट इट वॉज गोइंग टू बी मी एंड यू, जब से मैंने ये सोचा है कि ये तुम और मैं हैं, ये तुम और मैं हूँ जो कि आपस में लड़ने जा रहे हैं। आई हैव बीन अवेक एट नाइट्स, जब से मैंने ये सोचा है कि ये मैं और तुम हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं कई रातें नहीं सोया। पुलिंग पंचेज ऑन यू, तुम पे मुक्के घुमाता रहा, ट्राइंग नॉट टू हर्ट यू, और ये कोशिश करता रहा कि तुम्हें चोट ना लगे। सेम हियर, इट इज़ नेचुरल टू थिंक अबाउट द फाइट। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा ख्याल है कि ये फितरी है कि हमें लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए। आई मीन वी बोथ आर आउटस्टैंडिंग फाइटर्स, मेरा मतलब है कि हम दोनों बहुत उम्दा बॉक्सर्स हैं, लड़ाई करने वाले हैं, एंड वी बोथ वांट टू विन, एंड एट द सेम टाइम वी बोथ वांट टू विन। मैं भी चाहूँगा कि मैं जीतूँ, तुम चाहोगे कि तुम जीतो। हम एक जीतना भी चाहते हैं, बट ओनली वन ऑफ अस कैन विन, बट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट वी टू विन टुगेदर, ओनली वन ऑफ अस हैज़ टू विन। सिर्फ एक को ही जीतना होगा। देर इज़ नो ड्रॉ इन द एलिमिनेशन। नाउ वो कहते हैं कि फाइनल राउंड में कोई मैच बराबर होने का भी चांस नहीं है। देर इज़ नो ड्रॉ, ये रूल ही नहीं है कि मैच बराबर हो, किसी एक को जीतना है, पिछाड़ देने में किसी एक को जीतना है। अली टैप्ड गुल जेंटली ऑन द शोल्डर, अली ने गुल को आराम से उसके कंधे पर थपथपाया। आई डोंट मीन टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग, मैं कोई शेखी नहीं मार रहा, बट आई वॉन्ट टू विन फेयर एंड स्क्वेयर, लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ फेयर एंड स्क्वेयर, फेयरली एंड ऑनेस्टली, टोटली ऑन मेरिट। ही मीन्स टू से दैट आई वॉन्ट टू विन। अली ने गुल से कहा कि मैं कोई शेखी मारने नहीं जा रहा, लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ फेयरली एंड ऑनेस्टली, टोटली ऑन मेरिट। फ्रेंड और नो फ्रेंड, या हम दोस्त होंगे या नहीं होंगे, ब्रदर और नो, या भाई हैं या नहीं हैं। दे शुक हैंड्स एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट ईच अदर इन द रिंग, उन्होंने हाथ मिलाया और रुखसत हो गए कि वो उसी दिन रिंग में मिलेंगे, एक दूसरे का सामना करेंगे। वॉकिंग द स्ट्रीट्स हैड नॉट रिलैक्स्ड अली, गलियों में चलते हुए अली रिलैक्स नहीं था, अली पुरसुकून नहीं था। द मोर ही थॉट अबाउट द फाइट, जितना जितना वो लड़ाई के बारे में सोचता जा रहा था, द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट, उतना ही वो उलझता जा रहा था, उतना ही वो हैरानकुन होता जा रहा था। लॉस्ट इन थॉट्स ही लेफ्ट हिमसेल्फ क्वाइटली इनटू हिज अपार्टमेंट, अपनी सोचों में गुम वो खामोशी से अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड, और सीधा बिस्तर पर चला गया। फॉलिंग इनटू अ रेस्टलेस एंड फिटफुल स्लीप विद साउंड्स ऑफ gong for round 1. Although he went straight to bed, but what happened? He could not sleep. Falling into a restless and fitful sleep. Fitful sleep means wake up several times. That is broken sleep. जिस नींद से आप बार बार जागते हैं, broken sleep. With sounds of bong. Bong means it is a metal disc used as a bell. जैसे फर्स्ट राउंड की बेल बजती है, बार बार उसके कानों में उस बेल की आवाज़ गूंज रही थी। When Gul reached home, he made his way to the rooftop. And Gul, on the other hand, when he reached home, he went straight on the rooftop. वो छत पर चला गया. In the quiet early dark, he peered below where the lights of the city blinked. और वो अंधेरे में उसने देखा कि गलियों में, शहर में, उसने नीचे गली में देखा कि शहर की बत्तियाँ जल रही हैं। एंड द साउंड्स ऑफ कार्स मिंगल्ड विद द शाउट एंड द लॉफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, और कारों की आवाज़ें बच्चों के हंसने और उनके चिल्लाने के साथ मिक्स अप हो रही हैं, मिल रही हैं इन द स्ट्रीट, गली में।
He was passing some heavy time on his rooftop. अपनी छत पे वो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा था. How would the coming fight affect his relationship with Ali? There was a question in his mind which continuously pinched him. एक सवाल था जो उसके जहन को बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये था कि क्या ये फाइट, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ लड़ने जा रहा है, दैट इज़ अहमद अली, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा. वो इकट्ठे बड़े हुए, उन्होंने इकट्ठे पढ़ा, उन्होंने इकट्ठे खेला, और अब वो दोनों फाइनल राउंड में एक दूसरे का सामना करने जा रहे हैं. तो इस लड़ाई का उनके रिलेशन, उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा इस लड़ाई से. नाउ नेक्स्ट इज, he says that finally the day of fight came. As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. अचानक वो जो लोगों का मजमा था, एक हजूम था, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया जैसे ही वो रिंग में दाखिल हुए. गुल एंड अली बोथ बाउड gracefully. Gracefully means एलिगेंटली, इन अ एलिगेंट वे. बहुत शान से वो एक दूसरे के सामने खूबसूरत अंदाज से झुके. एंड देन रेज देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट टू एडमिट. देन दे रेज देयर आर्म्स टू एडमिट दैट दे आर फाइनली हियर टू फाइट. गुल टर्न स्लोली एंड हिज आईज मेट अली. गुल पीछे मुड़ा और दोनों की नजरें मिली. सडनली अलीज लेफ्ट आई विंक्ड. लेकिन अली ने अपनी बाई आंख विंक की, थोड़ी बंद की. एंड गुल रिस्पॉन्डेड इन द सेम वे बिकॉज दे वर फ्रेंड्स टू ईच अदर. बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग. सडनली द बेल स्टार्टेड रिंगिंग. द रोर टर्न टू स्टिलनेस एंड पीपल स्टूड क्वाइट. Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. Now the moment we have all been waiting for, the main event between two fine young fighters. In this corner, weighing 131 pounds, Ahmad Ali. He introduces Ahmad Ali. The announcer first of all introduces Ahmad by saying that he weighs 131 pounds. इसका वजन 131 पाउंड है. And in this corner, weighing 133 pounds, Gulsher Khan. The winner will represent Pakistan in World Boxing Championship in the lightweight category. There will be no draw. मैच बराबर नहीं होगा. May the best man win. Only the one who is the best will win today. Bong bong, round one. Now the bell for the round one rings. Ali and Gul turned and faced each other squarely in a fighting pose. They came in fighting pose and they turned each other squarely. चकोर वो एक दूसरे की तरफ घूमे. Ali wasted no time, but Ali ने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर, he came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder. वो तेज़ी से आगे बढ़ा, सर उसका झुका हुआ था. half hunched, leaning forward. hunched means आगे की तरफ झुकना with raised shoulders. उसका कंधा जो था वो ऊंचा था. and lashed out with a straight left, and he hit with a left fist. और लैश आउट मीन्स हिट विद लेफ्ट. उसने अपने बाएं मुक्के से एक घूंसा लगाया. ही मिस्ड अ राइट क्रॉस. उसने राइट हिट को मिस कर दिया. एज गुल स्लिप्ड द पंच, क्योंकि गुल जो था उसने पंच से वो बच निकला. एंड काउंटर्ड विद 1 2 3 लेफ्ट्स दैट स्नैप्ड अलीज हेड बैक. और उसने ही रिस्पॉन्डेड. काउंटर्ड मीन्स ही रिस्पॉन्डेड इन द सेम वे विद 1 2 3 लेफ्ट फिस्ट्स. उसने लेफ्ट हैंड से 1 2 3 घूंसे मारे. दैट स्नैप्ड अलीज हेड बैक, जिसने अली के सर के पिछले हिस्से पे हिट किया. एंड सेंडिंग अ माइल्ड शॉक कोर्सिंग थ्रू हिम. कोर्सिंग मीन्स मूव विद स्पीड, तेजी से गुजरना. माइल्ड शॉक कोर्सिंग थ्रू हिम. और उसके जिस्म में एक शॉक, एक करंट दौड़ गया. If Ali had any small doubt about their friendship affecting their fight, अगर अली को थोड़ा सा भी शक होता कि उनकी दोस्ती उनकी लड़ाई को मुतासिर कर रही है, it was completely dispelled. ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती. Gul's left hand was like a piston bumping jabs, one right after another with seeming ease. गुल का बायां हाथ
like a piston. Piston is a heavy metal disc which moves continuously. एक piston की तरह it was bulleting the jabs. ये उसके जैब्स को, उसके जबड़ों को पंप कर रहा था, मुसलसल हिट कर रहा था, वन राइट आफ्टर अनदर विद सीमिंग ईज, बहुत आसानी से. It seemed very easy for him to pump him continuously. Ali bobbed and weaved. Bobbed and weaved means avoided punches by bending legs and lowering head. अली बार बार अपना सर झुका लेता और अपनी बॉडी को नीचे, बेंडिंग लेग्स, अपनी लेग्स बेंड करके नीचे हो जाता इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज पंप्स. अली बॉब्ड एंड वीव्ड एंड थ्रू ओकेजनल पंचेस विद हिज राइट, और अपने राइट हैंड से उठ के उसको उसी तरह से मुक्के लगाता. He ducked a short right and missed a left hook. He ducked a short right. He ducked means he lowered quickly. वो नीचे को झुक गया and missed a left hook, और उसने बाएं हाथ का वार मिस कर दिया, वो उससे छूट गया. अली trapped him against the ropes. अली ने उसको रस्सियों के साथ पीछे धकेल दिया. Just long enough to pour some punishing rights and lefts to Gul's hard midsection. उसने उसको रस्सियों के साथ उसकी टेक लगवा दी और उसके पेट पर मुसलसल घूंसे मारता रहा, राइट और लेफ्ट हैंड से घूंसे लगाता रहा. Bong, midsection means पेट, the middle area of the chest and the lower abdomen, पेट. Bong, round 1 came to conclusion, and here round 1 comes to an end. Then both Learit brothers froze their punches well on its way. दोनों लियारी के पले बड़े हुए जो भाई थे, जो वहाँ लियारी में रहते थे, उन्होंने they froze their punches well, उन्होंने अपने घूंसे जमा दिए on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. और अच्छे खिलाड़ी होने का जो अप्रूवल था उसका सबूत पेश किया. नो सूनर डिड द राउंड 2 बिगिन, जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, देन अली वॉज ऑफ हिज स्टूल, अब अली जो है वो अपने स्टूल से उठ खड़ा हुआ, एंड रश्ड एट गुल लाइक अ बुल, एक बुल की तरह, एक भैंसे की तरह गुल के ऊपर टूट पड़ा. सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड, और उसके सर पर दाएं हाथ से मुक्के मारता रहा. बीड्स ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड फ्रॉम गुल्स लॉन्ग हेयर, और गुल के लंबे बाल जो थे उधर से पानी के कतरे गिरने लगे. लाइट्स सडनली एक्सप्लोडेड इनसाइड अलीज हेड, और अली के सर में भी अचानक रोशनियाँ पैदा होने लगी. एज गुल स्लिप द ब्लो एंड हिट हिम विद द पिस्टन लाइक लेफ्ट ऑन अलीज चिन, जैसे ही गुल ने उसको हिट किया, उसको घूंसा मारा और पिस्टन की तरह, एंड हिट हिम विद द पिस्टन लाइक लेफ्ट ऑन अलीज चिन, और अली की थोड़ी पे एक सख्त किस्म का घूंसा लगा. उसने अली के सर में एक रोशन कर दी. Uproar and yelling broke out in the stadium. पूरे स्टेडियम में लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया, चीखना चलाना शुरू कर दिया. When Gul's crushing blow momentarily unbalanced Ali's leg, जब गुल का जो बहुत सख्त किस्म की हिट थी या उसका जो घूंसा था, उसने एक लम्हे के लिए अली की टांगों को गैर मुतवाज़न कर दिया, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगीं. नीदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, कोई भी लड़ाई करने वाला, इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था. सडनली अ शॉर्ट राइट पंच स्ट्रक गुल स्क्वेयरली ऑन द चिन, अचानक गुल अली का जो शॉर्ट राइट पंच था, उसने सीधे हाथ का घूंसा मारा जो कि अली के थोड़ी पर लगा. हिज लॉन्ग लेग्स टर्न टू जेली, उसकी भी लंबी टांगें जेली की तरह हिलने लगी, सॉफ्ट हो गई. एंड हिज आर्म्स फ्लेल्ड आउट डेस्परेटली, और उसकी जो बाजू थे वो भटकने लगे. फ्लेल्ड आउट मीन्स स्विंगिंग, उसके बाजू हिलने लग गए, लटकने लग गए, हवा में लहराने लग गए. अली ग्रंटिंग लाइक अ बुल, और अली एक भैंसे की तरह गुर्रा रहा था. थ्रू वाइल्ड पंचेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर सिमत से वो घूंसे मारता जा रहा था. गुल फेल्ट डिजी, अब गुल को चक्कर आने लगे. डिसओरिएंटेड, वो कंफ्यूज हो गया. disoriented, confused, bobbed and weaved, sometimes avoiding punches by bending legs and lowering head. कभी सर नीचे झुका लेता, कभी बॉडी नीचे कर लेता ताकि वो इनसे बच सके. evading most of the blows, evading means to escape
द हिट्स एंड ब्लोज। उन घूंसों से बचने के लिए, बहुत से घूंसों से वो बच भी गया। जब वो अपने बॉडी को नीचे कर लेता था या सर नीचे एकदम से झुका लेता था तो वो बहुत से घूंसों से बच भी गया था। Ali lashed back with a haymaker, but at the same instant, his eye caught another left hook from Gul. He fought back, lashed back, he fought back with a haymaker with a forceful blow, but at the same time, his eye caught another left hook. But Gul hit on his eye. Ali swung out, he with a sweeping movement tried to clear the pain. In a fog he heard the roaring of the crowd who seemed to have gone insane. Log pagal ho chuke the. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round, and second round came to an end. Bong, round 3, the final round. Up to now it had been pretty much even, but everyone knew there could be no draw and this round would decide the winner. सब जानते थे कि इस राउंड में अब विनर का डिसाइड हो जाएगा. दिस टाइम टू अली सरप्राइज इट वॉज गुलशेर हु केम आउट फास्ट चार्जिंग अक्रॉस द रिंग. अब गुलशेर तेजी से आया. अली ब्रेस्ड हिमसेल्फ. अली ने अपने आप को तैयार कर लिया. प्रिपेयर, ब्रेस्ड मीन्स टू प्रिपेयर वन सेल्फ मेंटली एंड इमोशनली, बट कुड नॉट वार्ड ऑफ द बराज ऑफ पंचेस. लेकिन जो मुक्कों की बरसात उस पर होगी वो उससे न बच सका. गुल ड्रोव अली हार्ड अगेंस्ट द रोप्स. उसने फिर उसको रस्सियों के साथ लगा लिया. द क्राउड गॉट फ्रेंजीड. अब लोग पागल हो गए. सो फॉर द टू हैड फॉट विद करेज एंड ब्रेवरी. अब तक तो दोनों बहुत हौसले और बहादुरी से लड़ रहे थे. अली टैप्ड हिज ग्लव्स एंड कमेंस्ड हिज अटैक अन्यू. नए सिरे से उसने हमला कर दिया. गुल थ्रोइंग बॉक्सर्स कॉशन टू द विंड. कॉशन टू द विंड मीन्स stop worrying about the result. Caution to the wind, it's an idiom. Stop worrying about the results. Gul, throwing boxers caution to the wind, jumped in to meet him. Both pounded away to strike constantly. एक दूसरे को मुस्तकिल मारते रहे. Neither gave an inch and neither fell to the canvas. ना कोई पीछे हटा ना कोई नीचे गिरा. Ali's left eye was tightly closed, क्योंकि अली की बाईं आंख बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी. ये बंद, it was swollen and it was closed. Coral red blood poured from Gul's nose. गुल की नाक से भी खून बहने लगा. They fought toe to toe, 1-to-1 fight. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of the crowd. लोग खामोश हो गए और उनके घूंसों की आवाज़ें आने लगीं. The referee was turned by their savagery. अब रेफरी तो उनकी ब्रूटैलिटी पे, उनके इस जालमाना वहशियाना रवैये पे हैरान हो गया. बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगैन. और बेल बजती गई. अली एंड गुल वर पास्ट हियरिंग. वो तो उन्होंने ना सुना, उन्होंने बेल की आवाज़ ना सुनी. देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स. ओलों की तरह एक दूसरे पे घोंसे बरसा रहे थे. फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स प्राइड अली एंड गुल अपार्ट. प्राइड मीन्स पुल्ड अपार्ट. उन दोनों को खींच के एक दूसरे से पीछे हटाया. कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम टू ब्रिंग बैक टू देयर सेंसेस. उन पे ठंडा पानी गिराया गया कि वो अपने होश आवास में वापस आएं. दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश टूवर्ड्स ईच अदर. उन्होंने इर्द गिर्द देखा, फिर एक दूसरे की तरफ भागे. अ क्राई ऑफ अलार्म सर्ज थ्रू स्टेडियम. पूरे स्टेडियम में खतरे की घंटी बज गई. वॉज दिस अ फाइट टू द डेथ इंस्टेड ऑफ अ बॉक्सिंग मैच? हर एक के जहन में ये सवाल था. And the fear soon gave way to wave upon wave of cheering as the two Liarit brothers embraced at the conclusion of the final round. और वो जो खौफ था वो जल्दी ख़त्म हुआ और ख़ुशी के नारों की शक्ल इख्तियार कर ली जैसे ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे से वो गले मिले फाइनल राउंड के इख्तिताम पे. नो मैटर व्हाट द डिसीजन दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर. कोई भी फैसला कुछ भी होता वो जानते थे कि वो एक दूसरे के चैम्पियन ही रहेंगे, एक दूसरे के हीरो रहेंगे. बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर एंड चैम्पियन ऑफ द ग्रैंड फिनाले इज. Now he was he was the one who was doing announcement. He was about to announce the final, the winner, the name of the winner. That the announcer turned to point to the winner. वो जैसे ही पीछे मुड़ा इशारा करने के लिए कि कौन है winner, and found himself alone. उसने देखा कि वो तो उस रिंग के अंदर अकेला खड़ा है. Arm in arm, the champions had already left the ring. उन दोनों ने एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले और रिंग से बाहर चले गए. No one wanted to be the winner because they were the close friends. They knew that they are champions to each other. वो एक दूसरे के हीरो हैं, एक दूसरे के champions हैं. With this, I thank you all. I hope you have understood this lecture. Beta, if anything requires to be explained, please write in your comment. I can explain it to you. Thank you so much.